Mrs. Nusrat, 45 years of age, gained formal education till FA, a teacher by profession, married for last 20 years to Mr. Ahmed. She is para 5 with no miscarriages, 4 spontaneous vaginal deliveries, and last born by the lower segment cesarean section. Her last born is 15 years old and her last menstrual period is 19th August 2020. She is resident of Wahdat Colony, Lahore, admitted by outpatient department of Sir Gangaram Hospital on 23rd August 2020 with presenting complaint of mass coming out of vagina from 5 years and worsening of symptoms from 1 month. My patient is non-diabetic from last 5 years, taking some oral medications, and her blood sugar levels are not controlled according to the on those medications. And her last visit to the physician was 2 years back. She was in usual state of health in 5 years back when she noticed some mass coming out of the vagina. Initially, it was small in size and it increased in the size gradually, and now it has increased to the size of the closed fist. Initially it used to go inside on its own and used to come out only after the prolonged standing at the end of the day, but from the last 1 month it stays outside all the day long, and she has to manually reduce it. Also, from the last 1 month, my patient is experiencing the irregular vaginal bleeding, which patient vaginal spotting, which patient can correlate with the presence of the ulcer on the mass. This bleeding is small in amount, reddish to black in color, and she does not need to use any pad for it. There is also history of the pain lower abdomen there is also history of the pain lower abdomen from last 1 month. It is mild to it is gradual in onset, mild to moderate in intensity, dull and dragging in character, non-radiating, and exacerbated by the daily activities and relieved by taking rest. There is no history of the involuntary leakage of the urine on coughing, laughing, and involuntary leakage of the urine on before reaching to the washroom and on listening the keys. Voice of the keys. Her daytime frequency is 4 to 5 times per day, and her nighttime frequency is 1 time per day. There is her urinary stream is all right, and there is no history of the post micturition dribbling. There is no history of the aneurisys or coital incontinence. However, she has to manually reduce it for the passage of the urine. My patient has also bowel complaints in a sense that she has to manually reduce it for the passage of the stool. Now, this is affecting her quality of the life, that she feels perennial heaviness while doing her household activities, and also her coital frequency is reduced, that she cannot that it has reduced to 1 time per month. My patient is para 5 with no miscarriages. All children were born by 4 were born by the spontaneous vaginal deliveries and 1 by the previous one, lower segment cesarean section. There is no history of the prolonged labor, excessive pushing before second stage of the labor, a macrosomic good size baby, or instrumentation retained placenta. All babies are of average weight, alive, healthy, breastfed, and vaccinated. There is no history of the chronic cough, constipation, feeling of mass in the abdomen, any liver problems, ascites, or heavy weightlifting, or the care of a bedridden patient. For these complaints, she has tried Pessary, which was fitted in a local hospital but she did not continue it
She tried a pessary for about 1 year back, which was fitted at a local hospital, but she did not continue it due to the discomfort. However, there is no history of any surgery for the urinary problems or for these complaints. During her stay in she presented to the Sir Gangaram Hospital 4 days ago, where she was advised admission. Her blood and urine tests are being done. Her ultrasound is being done. Her packing is being done. Her blood sugar levels are controlled, and a plan of surgery is given to her. But the timing and the mode of surgery is not known to my patient. Her obstetrical history is already described. Her menarche was at the age of the 13 years. She used to soak. She had regular menstrual cycle of 6 by 28, soaking 1 to 2 pads per day with average flow. No history of without passage of the clots. No history of the intermenstrual postcoital bleeding, dysmenorrhea, dyspareunia. Her pap smear has never been taken. Couple never practiced contraception. She is non-smoker, non-addict. Her sleep and appetite are normal. There is no personal history of the asthma, tuberculosis, cardiac disease, and her past medical and surgical history is non-significant except for the lower segment cesarean section. There is no family history of the diabetes, hypertension, tuberculosis, asthma, or thyroid, or there is no family history of the uterovaginal prolapse. She belongs to and her husband is a teacher, and he earns up 30,000 per month, and the necessities of life are met with difficulty. On examination, my patient of height 5 feet 4 inches and weight of the 58 kg per meter square, making her BMI of 24 kg per meter square, sitting comfortably on bed, well oriented in time, place, and person. She is pale looking, however, there is no jaundice, koilonychia, clubbing. Orodental hygiene is satisfactory, thyroid is not enlarged, all accessible lymph nodes are not enlarged. The breast is normal looking bilaterally with normal nipple areola complex, no mass, no stria or visible pulsations, no mass or lump palpable in all 4 quadrants of the breast or the axillary tail, no spinal deformity, sacral or the pedal edema. On systemic examination, chest is moving symmetrically bilaterally with respiration. She has normal vesicular breathing with no added sounds. Now, there are no visible pulsations in the cardiac area. Her apex beat is in the fourth intercostal space. Her first and second heart sounds are audible with no added sounds. Abdomen is scaphoid with the inverted umbilicus. No tenderness, no visceromegaly, and no mass palpable. Vulva is normal looking with normal hair distribution. There is a mass coming of 5 into 5 centimeter coming out of the uterus, which seems to be uterovaginal prolapse as the cervix is visible. There is an ulcer of 2 into 1 centimeter on the leading edge of the prolapse, which has smooth surface, regular margins, and covered with the granulation tissue, and the surrounding skin is normal. No, the stress incontinence is not demonstrated due to the empty bladder. On palpation, there is second degree uterovaginal prolapse and with moderate cystocele and mild rectocele. And on the left lateral examination, no enterocele. And on the bimanual examination, uterus is 8-week size, retroverted, mobile, and fornix is clear. Okay, good. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे ना आप विस्ट्रोमेगैली नहीं बोलते, नो मैस और विसरा पैल्पेबल. विस्ट्रोमेगैली का मतलब है कि यू वर एक्सपेक्टिंग सम विस्ट्रोमेगैली. ठीक है, वो जो किडनी और लिवर को फिर देखते भी नहीं है. नहीं, वो आप सिंपली कहते हैं नो विसरा पैल्पेबल. आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. ठीक है, और बाकी ठीक है जी ठीक है. लेकिन डॉक्टर से फिर लंबी हो गई. लंबी हो गई, बहुत लंबी हुई है. वही मैं सोच रही हाँ थी, इतने सुकून से सुना रही है. बट ये कि वो इसलिए
प्रैक्टिस इसमें करूंगी तो शायद थोड़ी सी कम हो जाए, ज्यादा तेज इसमें बोलना कुछ शुरू कर लूंगी। एक्स्ट्रा नहीं है, बट ये कि आपको थोड़ी हाँ सी ये प्रेजेंट करने की स्पीड बेहतर करनी पड़ेगी। जी ठीक है, वो मैं थोड़ी ठीक तेज है, कर और वो लेती हूँ। इनिशियली उसकी जो डायबिटीज की इतनी डिटेल्स बताई, इतनी मेडिकल डिसऑर्डर की डिटेल्स गायनी में तो हमें चाहिए ही नहीं होती। बस सिर्फ दो बातें बताई थी कि वो कंट्रोल्ड है अनकंट्रोल्ड है, और हम्म फिजिशियन के बारे में गई थी बस। इसके अलावा तो बल्कि मैंने इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी लोग ऐड करते हैं, मैंने तो वो भी नहीं ऐड की कोई वो भी। पता है, सिर्फ वो ऑप्स में तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर से आपकी आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी इफेक्ट हो रही होती है। गायनी हाँ में जी आपकी जो आउटकम है वो नहीं चेंज होती, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है उसे सिंपली आपने कंट्रोल करना है। या तो वो आपकी सर्जरी से पहले कंट्रोल होनी चाहिए, या फिर ये कि वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है फॉर योर मैनेजमेंट। जी ठीक अदरवाइज है। किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर की प्रेजेंस से जो आपके पेशेंट की कंप्लेंट है वो एक्यूटली नहीं चेंज हो रही। Although ठीक है। diabetes hypertension can be a risk factor for endometrial carcinoma, but अगर 2 महीने या 3 महीने आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नहीं कंट्रोल होते, इट डजेंट मीन कि पेशेंट की कंप्लेंट चेंज होगी या उसकी डायग्नोसिस एक्यूटली चेंज हो जाएगी। इसलिए मेडिकल जी ठीक। डिसऑर्डर्स हमारे लिए गायनी में सिर्फ इतने ही सिग्निफिकेंट होते हैं कि आप बता दें शी इज नॉन डायबिटिक, या मेडिकल हिस्ट्री में बता दें शी इज नॉन डायबिटिक, हर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। एंड ड्यूरिंग मैनेजमेंट भी आप सिंपली ये बताते हैं मैं पेशेंट इज डायबिटिक एंड आई विल इन्वॉल्व physician or diabetologist for control of her blood glucose levels before moving on to any surgery। और अगर आप सर्जरी नहीं करते तो फिर तो आपको वैसे भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपने जो ट्रीटमेंट देनी है दे दें और रेफर टू फिजिशियन कर दें कि वो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करवाए। जी ठीक है। और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी फिर आपकी 2 दफा हो जाती है, एक आपने HOPI में बताई और फिर आपने ऑब्स्टेट्रिकल में बताई। और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में स्पेशली प्रोलैप्स में आपने ये 4-5 चीजें बतानी होती हैं। नो हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पुशिंग ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, नो हिस्ट्री ऑफ अनरिपेयर्ड पेरिनियल टीयर, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा एंड गुड साइज बेबी। जी ये आपने कहीं मेंशन नहीं किए, HOPI ऑल्दो उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नहीं 2 दफा सारी बताई। की है, इतनी सारी बताई है एक। ओके, फिर मैंने मिस की है। वो लेकिन ये HOPI में ही बताना पड़ेगा क्योंकि बेसिक रिस्क फैक्टर तो है ही चाइल्ड बर्थ ना। वही ना, नहीं वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ बताओ या वहाँ बताओ, एक बट बताना 1 दफा ही है। जी ठीक है। ठीक है, और इसे आप मिस नहीं कर सकते ना। ऑप्स में गायनी की जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है गायनी में वो सिर्फ लैब्स में ही सिग्निफिकेंट है, बाकियों में अगर आप इलेबोरेट नहीं भी करते तो कोई इतना इशू नहीं होता। ओके, इन्वेस्टिगेशन I want her blood group with RH factor. AB पॉजिटिव। I want her complete blood count with date, including hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count in cubic millimeter, and platelets in 10⁻⁹ per liter. Where your patient was having pallor? Probably because of the spotting from the from due to the Where ulcer. you see for pallor? Pallor कहाँ देखते हो? पेलर उसके कंजक्टिवा में, बट Are you टिप ऑफ sure she नोज was में, pale? बेस ऑफ द टंग में। उसकी ना इन्वेस्टिगेशन में उसकी HB एचबी कम कितनी थी थी? और उसकी लुक भी 9.5 थी। ओके, इवन देन 9.5 पे पेशेंट पेल होना नहीं चाहिए, और प्रोलैप्स के साथ आपका एनीमिया अनलाइकली है। डॉक्टर शाजिया अगर 9.5 या 10.5 दे दे तो हमने पेल ऐड नहीं कर लेना होता खुद ही क्यों से। ऐड कर लेंगे? ये 9.5 पे कौन पेल होता है? बस कर दो। नहीं क्योंकि देखिए एग्जाम में तो वो हमें इन्वेस्टिगेशंस पहले दे देते हैं ना, कैसे हम बाद में प्रेजेंट करते हैं। आप अपनी चीजें कुक नहीं कर सकते, ठीक है? अब पूरी हिस्ट्री पे जैसे ही आपने पेल बोला है, अब मैंने आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं निकाली ना, हम्म एक्सेप्ट ये कि जब भी आपने पेल बोला है आई वाज श्योर पेशेंट इज नॉट पेल। मैंने आपका मरीज मेरा देखा क्वेश्चन तो पता है नहीं है क्या है, ना। क्योंकि इस एग्जाम में मेरे साथ यही हुआ था फर्स्ट वाइवा में। उन्होंने मुझे एचबी कम दी थी हम्म, और फिर उन्होंने यही पूछा मेरे से कि योर पेशेंट वाज नॉट पेल, खुद उसकी एचबी कहते तो कम है।
तो फिर उस दिन मैंने ये तो डिसाइड किया था कि जब देखो एचबी जो कम दे साइंस देंगे तो मैं खुद ही ऑफ फेल कह दूंगी। एनीमिया है, एनीमिया में नहीं, गायनी की हिस्ट्री में डॉक्टर शाजिया, गायनी वाले पेशेंट में उन्होंने कहा गायनी था। में भी अगर पेशेंट हाँ को जी। कोई सीवियर एनीमिया है, पैलर कब विजिबल होता है? साइंस ऑफ एनीमिया कब होते हैं? 7 से कम पे, तो फिर मॉडरेट टू वो सीवियर। आज आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 9 या 10 पे पेशेंट फेल होगा? नहीं, फिर कॉमन सेंस। मगर क्लिनिकली भी हम देखते नहीं है कि इसकी 9 वाली है, इसकी 8 वाली है, इसका कंजक्टाइवा कैसे का है, वो भी तो हम असेस कर ही रहे होते हैं। बट ये सलन भी गर्म कर दे है कोई? बट ये कि जो पैलर है, सलन नहीं है? जो विजिबल पैलर है, वो तो आपका आता है सीवियर एनीमिया पे। अब 10 पे तो कोई बंदा फेल नहीं होता, या होता है? नहीं, बस मुझे ये बता दें कि अगर उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन में कम दे दी तो मैं ऐड करके, क्योंकि उन्हें पता लगे कि मैंने एनीमिया पिक की है, या मैं ना करूं। यार देखो, आप जो एग्जामिन करते हो, अगर आपको पेशेंट फेल लगता है तो आप बोलोगे ना, और अगर आपको फेल नहीं लगता तो फिर आपने क्यों ऐड या एक्सक्लूड करना है? हो सकता है एग्जामिनर ने आपसे एनीमिया सुनने के लिए आपको ऐड दे दिया हो, लो एचबी। अच्छा, ठीक है, और पेशेंट हो देखो ना जो और मैं बिला आपकी वजह कहूं कि एग्जामिनेशंस की फाइंडिंग्स हैं वो आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? जी ठीक है, सही है। ओके, उसे आई वांट हर चाहिए कंप्लीट ब्लड जल्दी में। काउंट विद डेट इंक्लूडिंग यार हीमोग्लोबिन इन जो भी ग्राम पर डेसिलीटर। आपको फाइंडिंग्स मिलती हैं, आपने वही बोलनी है, अनटिल अनलेस कि आपने कोई बहुत बड़ी ग्रॉस चीज मिस की हो और एग्जामिनर आपको कहे कि ये चीज मरीज में है और आपको लगता है कि हाँ ये थी और मैंने मिस की है, तो आपने बोलना है यस ये है, मैंने नहीं पिक की। बट अगर नहीं है तो फिर आपने क्यों हाँ में हाँ मिलानी है? जी ठीक है, और मुझे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी बताएं, क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल था कि 5 साल वाली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं हो सकती। नहीं तो नहीं, जब तो से फिर मैं उससे ये पूछती हूँ कि प्रोलैप्स की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना, वो इतनी ही लंबी होती है, 5 ईयर या 10 ईयर के पेशेंट्स जो हैं वो कोरिलेट करते हैं रादर आपने किसी भी इवेंट से, कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कब नोटिस किया, either after last delivery or some after immediately after menopause। इसलिए कि ये जो प्रोलैप्स है दैट इज ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो स्लो होता है। डिलीवरी के बाद पेशेंट को थोड़ा सा फील हुआ लेकिन कोई साइन सिम्टम नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, फिर भी एसिम्टोमेटिक था, फिर थोड़ी सी उसे जनाब यूरिनरी कंप्लेंट्स आई, फिर भी वो उसे टॉलरेट करती रही, बॉवल आई वो भी टॉलरेट करती रही। अब अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट प्रेजेंट कब करता है, या तो उसे अल्सर बन जाए और स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर प्रोलैप्स इरिड्यूसेबल हो जाए। जब तक इनका लेकिन प्रोलैप्स डॉक्टर साहब इरिड्यूसिबल तो फिर भी नहीं हम कहते ना, मतलब वो मैन्युअली रिड्यूस चाहे नहीं, हो तो वो तो जाता है। वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है ना, वो उसने आपको कब प्रेजेंट किया है। एक होता है अच्छा। मैन्युअली रिड्यूसेबल और एक इरिड्यूसेबल होता है, जो कि पेशेंट से फिर रिड्यूस नहीं, मैन्युअली भी रिड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि पेशेंट हम को इवन जब सेकंड डिग्री को भी इरिड्यूसेबल कह रहे होते हैं समटाइम्स, लेकिन वो सेकंड गलत डिग्री कह का रहे ये होते होता हैं। है कि हाँ वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम ये कह दें कि पहले वो खुद ही चला जाता था, अब मैन्युअली करना पड़ता है ओके, उसको। जो पेशेंट आपको हिस्ट्री देता है आपने वही बोलना है ना, कि पेशेंट यही कहता है कि जी पहले ठीक जब है। मैं लेटती थी प्रोलैप्स अंदर चला जाता था, लेकिन अब लेटने पे भी नहीं जाता, मुझे हाथ से अंदर करना पड़ता है। या एंटर पेशेंट करना ये पड़ता कहता है है कि जी, पहले ऐसे ही। मैं हाथ से अंदर करती थी चला जाता था, अब 2 महीने या महीना हो गया है हाथ से भी अंदर नहीं जाता, ये मुसलसल बाहर ही रहता है। दैट इज हम्म इरिड्यूसेबल। हम्म ठीक है। ओके, इन्वेस्टिगेशन और कोई भी आई वांट हर। एग्जामिनेशन या चीजें आप अपनी कुक नहीं कर सकते कि उसने मुझे 7 HB दे दी है तो मैं मरीज को फौरन पेल बना दूं, जबकि एग्जामिनेशन पे इसका मतलब ये है कि आपने मरीज को ध्यान से देखा ही नहीं है, आपको ये भी नहीं कंफर्म कि वो पेल थी या नहीं थी, आप सिर्फ ठीक है। फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करते, आप अपनी फाइंडिंग्स पिक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब पेलर तो हर बंदे को पता चल जाता है। जी ठीक है। I want her complete blood count with date including hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte in cubic millimeter and platelets in 10 raised to power 9 per liter. हीमोग्लोबिन इज 11 ग्राम पर डेसीलीटर। और सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर आपको मरीज पेल मिल गया था तो फिर आपने उसे एनीमिया की हिस्ट्री क्यों नहीं ली?
वो इन्वेस्टिगेशंस में मैं कंफर्म करके फिर जाती ना क्यों? दोबारा पूछने के लिए। एग्जामिनेशन भी आपने अपने एग्जामिनेशन पे बोला ना मरीज फेल है, डॉक्टर शाजिया समटाइम्स कम्प्लेक्शन भी तो होते हैं लोगों के, तो वो फिर उसे कंफर्म ना नहीं करना बोलो, चाहिए। तो फिर उसे ना बोलो। अच्छा, ओके ठीक है, देखो जो समझ आ गई। कम्प्लेक्शन है ये ना हर बंदे को कंफ्यूजन होती है पैलर में, कि जो कम्प्लेक्शन है दैट इज स्किन कलर, और जो एनीमिया का पैलर है वो हम देखते हैं कंजक्टाइवा में। अब कंजक्टाइवा और स्किन कलर में क्या वो है, या तो स्किन का जो आपकी पेल होती है वो भी जो पामर क्रीजेस होती हैं वो उस वक्त होती हैं जब आपके पेशेंट को वेरी सीवियर एनीमिया हो, उसकी HB4 तक चली जाए। हम्म अब ये आपने एक तो पैलर उसका बोल के तो ब्लेंडर मारा, फिर उसका स्किन कम्प्लेक्शन बोल के दूसरा ब्लेंडर मारा, कि यार आपको ये भी नहीं पता कि पैलर कंजक्टाइवा का पैलर और स्किन का पेल होना दो डिफरेंट चीजें हैं। और अगर ठीक आपके है। पेशेंट ने मेकअप किया हो तो फिर आप उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि वो नहीं, एनीमिक वो है तो या नहीं। कंजक्टाइवा में तो नहीं मेकअप होगा ना। अब आइंदा जाके तो ये पेशेंट की प्रॉपरली कंजक्टाइवा देखना है कि दैट इज डार्क पिंक, लाइट पिंक और पेल। ठीक है। आज जाओगी तो 10 मरीजों का कंजक्टाइवा देखना है कि और उन तीनों चारों में डिफरेंस क्या है और फिर उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या है। ठीक है, सही है। ओके, TLC platelets. नॉर्मल। I want her hepatitis B surface antigen and anti-HCV status. हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। Hepatitis B positive. यस। Okay. I want her blood sugar level. Since patient is admitted, I want 6 blood sugar levels. ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर कंट्रोल्ड। I want her urine complete examination, including microscopy and biochemistry. In microscopy, I need pus cells. In biochemistry, I need protein and sugar. 5 to 10% sugar 3 plus protein nil। Since my patient is diabetic, I want her renal function tests, including urea and creatinine. यूरिया 35, creatinine 0.8। Since my patient is hepatitis B surface antigen positive, I want her liver function test, including bilirubin, ALT, and AST, alanine transaminase, and aspartate transaminase. नॉर्मल। I want her abdominopelvic ultrasound. In pelvic ultrasound, I want to see the endometrial size of the uterus, endometrial thickness, and any endometrial myometrial echo texture, adnexal pathology, bilateral ovarian status, or presence of the ascites. In abdominal ultrasound, I want to see the liver status and the status of the kidney, ureter, and bladder. विल डिस्कस लेटर। I want her previous surgery notes if available. नॉट अवेलेबल। Okay, done. समराइज। 45 years of age, para 5 with no miscarriages, previous one diabetic, present with the history of mass coming out of the vagina from 5 years and worsening of यार symptoms अब from 1 month. एग्जामिनेशन भी कर चुकी हो तो अब उसका कोई डायग्नोसिस बन जाता है समरी तक या नहीं। वो डायग्नोसिस तो मैं एग्जामिनेशन में ना बताऊं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो सेम नहीं रहती। पूरी हिस्ट्री मतलब अब दोबारा मैं नहीं सुनानी होती। अच्छा, मेरा मतलब ये आप पहले पूरी समरी सुनिए डॉक्टर शाहजेब, फिर बताइएगा कि ये वाली लाइन बदलूं या वो वाली बदलूं। ओके। 45 years of age, para 5 plus with no miscarriages, previous one, non-diabetic from 5 years, presented with mass coming out of vagina from 5 years and worsening of symptoms from 1 month. On examination, second degree uterovaginal prolapse with moderate cystocele and mild rectocele with description above. And on she is hepatitis B surface antigen positive and her blood sugar levels are controlled. अब इसमें मैंने अच्छा एग्जामिनेशन में यही वो सारी समरी फाइंडिंग आपको मैं दोबारा। सुनाऊं। 45 हाँ, years, previous one C-section, and hepatitis C positive, non-diabetic, with second degree uterovaginal prolapse, moderate cystocele, mild rectocele, and no interocele, with 2 into 2 centimeter ulcer on anterior cervical lip। अब कौन सी बेटर ओके, है? हिस्ट्री एग्जामिनेशन इकट्ठे कर दूं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन इकट्ठे कर दूं। नहीं, अब कोई चीज मिस हुई है आपकी?
नहीं, और रिपीट भी नहीं हुई। फिर With second degree prolapse, moderate cystocele, mydectocele, no वो enterocele. देखो, समरी में आपने सिंपल वो वर्ड्स बोलने हैं जिस चीज जो आपने अब मैनेज करने हैं। मैनेजमेंट जी ठीक है। 45 ईयर से आपकी एज से मैनेजमेंट चेंज होगी। आपकी प्रीवियस 1 सी सेक्शन है, आपकी मैनेजमेंट को इफेक्ट करेगा। डायबिटिक है, जी हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, आपकी मैनेजमेंट को इफेक्ट करेगा। सेकंड डिग्री यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स विद मॉडरेट सिस्टोसील, माइल्ड रेक्टोसील, नो इंटेरोसील एंड 2 × 2 सेंटीमीटर अल्सर। अल्सर आपकी मैनेजमेंट को इफेक्ट करेगा, जो कि आपने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है। ओके देन। यार जी ठीक लगता है इंटरनेट को भी पता चल जाता है रहीमिया खान से कॉल हो रही है, आवाज नहीं आती। अब सही चल रहा है। है। अब तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, रात को वाकई बड़ी खराब आ रही थी। हालांकि मैं रात को भी इधर ही थी और ये इंटरनेट भी इधर ही लगाया हुआ था। ओके देन, मैनेजमेंट, व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? हाय अल्लाह, बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे। My first provisional diagnosis is second degree uterovaginal prolapse as the नॉट cervix प्रोविजनल is डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। different. My first differential diagnosis is anterior compartment prolapse, including cystocele. No, but it is not in my. But it is not my the provisional diagnosis because the apex of the cervix is visible at the leading edge of the prolapse, and the I and my both fingers are meeting. My both fingers can feel the fundus, and it is and the bladder is felt separate from the prolapse. My second differential diagnosis is Gardner duct cyst. It is also globular or cystic swelling in the anterior compartment of the vagina, mimicking the cystocele, but it is ruled out because Gardner duct cysts are irreducible. My third differential diagnosis is urethral diverticulum. These are also the cystic swellings mimicking any swelling at the vagina. Now, these are due to the blockage of the paraurethral ducts, which lead to the swelling. But there is history of the cystitis or the urinary complaints or infections which the patient is not, and the patient is not giving any such history. Then what तीन is हो your गए. provisional diagnosis? My provisional diagnosis is second degree uterovaginal prolapse with moderate cystocele and mild rectocele. But in differential diagnosis, prolapse was not included. Your first differential was cystocele, second differential was Gardner cyst, and third differential was urethral diverticulum. Then from where now this second degree uterovaginal prolapse came? वो तो मैं फर्स्ट पे आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस करके बताने लगी थी, आपने कहा नहीं वो बता दिया, आगे बताओ। सबसे पहला तो मेरा मैंने यही बताया था कि दिस मॉडरेट सेकंड डिग्री यूट्रोवाजिनल प्रोलैप्स, मॉडरेट सिस्टोसील, माइल्ड रेक्टोसील, एंड दैट इज माय फर्स्ट डिफरेंशियल एंड आल्सो माय प्रोविजनल, Okay. एंड माय डिफरेंशियल आ गई है। How will you manage? मुझे पहले इसके ये डिफरेंशियल्स बता जाए, इसके डिफरेंशियल्स सिस्टोसील के बाद क्या On the बताने होते basis हैं? of history examination and available investigations, my most probable first differential diagnosis is second degree uterovaginal prolapse, as cervix is visible outside the introitus. और वो जो आपने बोला था ना, mass coming out of uterus, that is not out of uterus, that is out of introitus on examination. आउट ऑफ इंट्राइटिस, ठीक है. आउट ऑफ As cervix is visible vagina बोला। outside introitus with ulcer and अब यहाँ पे आपको वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि how you confirmed it is second degree. And ठीक है, cystocele is also present and rectocele is also present, so your second differential can be inverted uterine inversion, but तो that is शाजिया not फिर वो कहते हैं 45 इयर्स में कैसे क्रॉनिक यूटाइन इन्वर्जन, इसको तो मैं खुद नहीं बोलती, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि कंट्रोवर्शियल कौन तो सी है, बट यूटाइन ये कि इन्वर्जन। उसके डिफरेंशियल्स में चूंकि आपका प्रोलैप्स ही मिडिल कंपार्टमेंट का है, तो मिडिल कंपार्टमेंट, देखो आपने जो डिफरेंशियल्स बनाए अपने इंटीरियर वो कंपार्टमेंट के बनाए इंटीरियर ना, कंपार्टमेंट के थे। अब जो आपकी गार्टनर सिस्ट है या यूरिथ्रल डाइवर्टिकुलम है, दैट आर इन डिफरेंशियल्स ऑफ सिस्टोसील.
तो फिर तो मुझे कुछ रेक्टोसील का भी कोई बनाना पड़ेगा, ये बात मेरे भी माइंड में, रेक्टोसील ठीक है। तो आपका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है नहीं, माइल्ड रेक्टोसील है। माइल्ड है। और रेक्टोसील में हम इंटेरोसील एक्सक्लूड भी करते हैं, वो आप एग्जामिनेशन पे एक्सक्लूड कर सकते हो। रेक्टोसील का और डिफरेंशियल्स क्या हो सकता है? रेक्टल वॉल सिस्ट वो कभी हुई नहीं है। देखो आपको जो बाहर चीजें विजिबल हैं दैट इज सर्विक्स एंड ब्लैडर, यही जी है ना। ठीक है, जब भी मॉडरेट सिस्टोसील इन्हीं है के दैट इज डिफरेंशियल बनाने विजिबल। हैं। अब आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि जो मिडिल कंपार्टमेंट में है आइदर इट इज प्रोलैप्स और इन्वर्जन, and anterior compartment either it is cystocele, urethral diverticulum or Gardner's duct cyst। ठीक है। तो आप जब भी अपने डिफरेंशियल्स बनाते हैं तो आप प्रोलैप्स का स्पेसिफिकली आप बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड अवेलेबल इन्वेस्टिगेशंस। My most probable first differential diagnosis is second degree uterovaginal prolapse as cervix is visible and fundus is inside the vagina and with cystocele and mild rectocele. But and prolapse is a clinical diagnosis, but the differentials of prolapse can be chronic uterine inversion that is least likely in my patient as fundus is not present outside the uterus and I can feel fundus inside the vagina. And the ठीक है। differentials of cystocele can be anterior vaginal wall cyst or Gardner's duct cyst, but that are also least likely in my patient as that have these features and that are not present in my patient. इसमें मैं फाइब्राइड पॉलिप भी ऐड कर सकती हूँ डिफरेंशियल्स में? क्यों? क्योंकि वो भी सेम ऐसे प्रेजेंट करता है, बल्कि मैंने एक पेशेंट की हिस्ट्री ली थी, मैंने सारी हिस्ट्री ले ली और जब नीचे देखा तो वो जब फाइब्राइड पॉलिप पड़ा हुआ था। वो जब आप एग्जामिन कर चुके हैं तो अब वो पॉलिप नहीं है और यूट्रस भी जब नीचे है तो फिर और सर्विक्स भी बाहर है तो फिर फाइब्राइड पॉलिप नहीं ना ऐड करते। डिफरेंशियल में बता रही हूँ, वो डिफरेंशियल में नहीं ऐड करना। नहीं डिफरेंशियल्स में भी नहीं आता। जब आप एग्जामिन कर चुके होते हैं तो ऑल्दो आपकी जो प्रोलैप्स है ना इसका डायग्नोसिस है ही क्लिनिकल, एग्जामिनेशन पे आपका जी। डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप जब भी आप प्रोलैप्स के डिफरेंशियल्स बनाते हैं वो आप बताते भी ये हैं कि प्रोबेबली दिस इज क्लिनिकल डायग्नोसिस बट द डिफरेंशियल्स कैन बी, ये हो सकते हैं विद समथिंग आउट कमिंग आउट ऑफ विजाइना के। अगर आपने ऐड करना है दैट इज नॉट बैड, बट ये कि फिर प्रोलैप्स जो आपका पॉलिप है वो जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तब आपके माइंड में होना चाहिए कि इट कैन बी समथिंग कमिंग आउट ऑफ विजाइना। क्या क्या हो सकता है? प्रोलैप्स हो सकता है, आपका कोई फाइब्राइड पॉलिप हो सकता है, आपकी कोई सिर्फ इंटीरियर वेजाइनल, इवन आइसोलेटेड सिस्टोसील हो सकता है उसमें हाँ जी, प्रोलैप्स ना हो। हाँ फिर जी, मैंने देखा भी ऐसा पेशेंट। आइसोलेटेड एंटीरियर वेजाइनल वॉल सिस्ट या आइसोलेटेड गार्डनर्स डक्ट सिस्ट हो सकती है, या आपकी सर्वाइकल इलोंगेशन हो सकती है। अब इसमें से आइसोलेटेड सिस्टोसील के अगर आपको एग्जामिनेशन पे प्रोलैप्स नहीं मिला तो आपका प्रोलैप्स निकल गया, फिर आपकी यूट्राइन इन्वर्जन भी निकल गई और फिर आपका वो फाइब्राइड पॉलिप भी निकल गया और आपकी सर्वाइकल इलोंगेशन भी निकल गई। फिर आप सिर्फ रह जाते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में। अगर आपको सिर्फ सिस्टोसील मिला एग्जामिनेशन पे पेशेंट ने तो उसका भी आके यही समथिंग कमिंग आउट ऑफ विजाइना कहना है। जब सिस्टोसील सेम मिलता हिस्ट्री है तो देती है फिर आप उसमें प्रोलैप्स वाले डिफरेंशियल्स ऐड नहीं करते। जब आपको सर्विक्स भी इनसाइड वजाइना मिल गई, यूट्रस वेल सपोर्टेड एंटीवर्टेड मिल जाता है, फिर आप उसमें प्रोलैप्स या अपना फाइब्राइड पॉलिप या सर्वाइकल इलोंगेशन डेफिनेटली नहीं ऐड कर सकते। वो बेसिकली आपने डिफरेंशियल्स बनाने हैं अपने कंपार्टमेंट के हिसाब से। मिडिल कंपार्टमेंट में आपका पहला डिफरेंशियल यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स होता है, उसके डिफरेंशियल्स में क्रोनिक यूट्राइन इन्वर्जन या फाइब्राइड पॉलिप हो सकता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट की कॉमन कंप्लेंट सिस्टोसील होता है, उसके डिफरेंशियल्स में आपका एंटीरियर वेजाइनल वॉल सिस्ट या गार्डनर्स डक्ट सिस्ट हो सकती है। ठीक है। और अगर पेशेंट को सिर्फ प्रोलैप्स है और माइल्ड सिस्टोसील है तो फिर आपका ये गार्डनर्स डक्ट सिस्ट और एंटीरियर वेजाइनल वॉल सिस्ट भी डिफरेंशियल्स में नहीं ऐड होते।
इसलिए कि जो जी माइल्ड ठीक है। सिस्टोसील है वो आपको पता है कि वो जब यूट्रस बाहर आई है तो उसके साथ प्रोबेबल है कि एंटीरियर वजाइनल वॉल आई है। जी तो ठीक है। ये भी ऐसे रटे रटाए नहीं है, वो आपने सोच के एंड अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स ऐड करने होते हैं। लोग शायद वॉल्ट प्रोलैप्स के भी डिफरेंशियल्स बता दें फिर। वॉल्ट में तो फिर सिर्फ माइल्ड माइल्ड होती हैं दोनों चीजें, सिस्टोसील भी रेक्टोसील, वॉल्ट लेकिन इसमें प्रोलैप्स में एंटेरोसील सारा आ सकती है। ब्लैडर ही बाहर होता है और क्या होता है? वॉल्ट उसका बाहर आ रहा होता है, साथ में उसके जब भी ब्लैडर आ रहा वॉल्ट बाहर आएगा है, तो वो उसकी लेके तो आएगा। मॉडरेट या सीवियर सिस्टोसील होगा ना। जी ठीक है, तो उसमें बस इंटीरियर कंपार्टमेंट वाली हाँ सारी मेरे डिफरेंशियल खोल देंगे। हाँ, इसलिए कि ठीक है आपको हिस्ट्री पे पता चल चुका है पेशेंट की यूट्रस नहीं है। जी। अब मैंने आपसे वॉल्ट प्रोलैप्स भी एक दिन डिस्कस करना है, मुझे बड़ा खौफनाक लगता है चलो एक वॉल्ट एक ले प्रोलैप्स। लेना उसका। ये जी वॉल्ट ठीक है। प्रोलैप्स ना यूट्यूब पे भी इसकी मेरे ख्याल से हुई हुई है वीडियो अपलोड केस डिस्कशन की। अच्छा ठीक है, मैं ओके चेक कर देन, लेती हूँ। हाउ विल यू मैनेज? Before management, I need to complete my missing investigations. I need her pelvic ultrasound. What you need on pelvic ultrasound? I need to see the size of the uterus, endometrial thickness, endometrial myometrial echo texture, any adnexal pathology, bilateral ovarian status, and the presence of the ascites. Also, I need abdominal ultrasound for the liver status and for the status of the kidney, ureter, and bladder. Abdominal ultrasound is normal. Why you need endometrial thickness? Because my patient is 45 years of the age and I am planning her surgery, so before the conservation of ovaries or for the for ruling out any endometrial pathology, I need to see her endometrial thickness. Is your patient having any endometrial complaint? No, there are no menstrual complaints, but Then why she you is are at a much worried about endometrial pathology in prolapse? because my patient is 45 years of the age, she is diabetic, she is at the risk factor for any endometrial pathology since she is in the hospital, and her complete workup should be done, and it is the part of the pelvic ultrasound, so I need endometrial thickness. डॉक्टर इरम एक सेकंड मैं अपना